Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 19, which is ROI, Return on Investment, and ROE, Return on Equity. So, the basic concept behind this chapter is said that when a person, an investor, is investing money, then he is interested to know how much I am earning, what is the rate of return. So these two are the rates of return or rates of profitability. Okay, so let us discuss about this return on investment and return on equity. Now there is one difference. When I say return on investment, so when I use the word investment, so here all the investors are covered. Now when I say all the investors are covered, it means shareholders are covered, and in shareholders also I have two types: equity shareholders and preference shareholders. And one more thing is said, in return of investment, lenders are also covered. So shareholders will give you own money, but lenders will provide you borrowed money. Now lenders can give you money in the form of debentures, or it may be a bank loan. So this is the borrowed fund, and it is also called debt. Okay, so return on investment is a general rate of return which is for all the investors together. यानी पूरा बिजनेस, जितने पैसे लगे हैं बिजनेस में बाय शेयर होल्डर्स एज वेल एज लेंडर्स, मिलकर कितना अर्निंग हुआ है. ओके, सो व्हाट इज द प्रॉफिट अर्नड ओवर एंटायर इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नाउ रिटर्न ऑन इक्विटी is slightly different. Here we will consider only equity shareholders, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही काउंट किए जाएंगे. ओके, सो ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रियल ओनर्स है उनको कितना रिटर्न मिला है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी. इवन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा. एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी. सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना कमा रहे हैं वो जानना है. तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी. ओके, अब सोचो कौन सा ज़्यादा होना चाहिए इन एनी बिजनेस. तो इन एनी बिजनेस रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. Why? Because equity shareholders are the real owners, they are the real risk bearers, and hence they should earn more than what is the overall earning. So चलिए with example मैं आपको समझाता हूँ, but before that let's go through few concepts. Profitability is the indication of efficiency. If profit is more, it means business is efficient, just like in human beings. If you are rich, then you are considered to be efficient. Profit helps the business to sustain and grow, and profit ratios also help to compare between the firms. So we can make comparison based on profitability. Now return on investment I have already explained. Please note, in accountancy the formula which you are using, that is more correct, it is absolutely correct, but here in entrepreneurship there is some difference. In entrepreneurship what they are doing, they are actually simplifying the formula. Okay, so I will suggest that you should go as per the formula which is given in your accountancy. So return on investment, as the name suggests, investment सभी पैसे लगे हैं वो यहाँ पर काउंट करने हैं. तो hence as the word is investment, आपको नीचे लिखना होगा total capital invested. And I have already explained, when I say total capital invested,
उसमें इक्विटी भी कवर्ड हो गया एंड उसमें डेप्ट भी कवर्ड हो गया, बट वन थिंग दे हैव फॉरगॉटन हियर इज प्रेफरेंस कैपिटल, सो यू शुड ऐड दिस वर्ड. सो कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रेफरेंस कैपिटल इज ऑल्सो कवर्ड. नाउ न्यूमरेटर में प्रॉफिट होगा. देखो कंसेप्ट इज वेरी क्लियर. इन ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो न्यूमरेटर में प्रॉफिट होगा और नीचे इन्वेस्टमेंट होगा. ओके, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऊपर होगा प्रॉफिट, बट यू नो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट. नाउ लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड के विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस in a better way. So look here, in this Excel file you are able to see that I have taken example of 3 companies. Okay, look here, there are 3 companies A, B and C. अब तीनों कंपनी में स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, बट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जितने पैसे लगे हैं तीनों बिजनेस में वो तो 4 लाख है. बट ए कंपनी ने सिर्फ इक्विटी शेयर्स रखे हैं, बी कंपनी ने 3 लाख के इक्विटी शेयर्स एंड 1 लाख के डिबेंचर्स रखे हैं, एंड सी कंपनी ने थोड़े डिबेंचर्स एंड थोड़े प्रेफरेंस शेयर्स भी रखे हैं अपार्ट फ्रॉम इक्विटी शेयर्स. सो तीनों कंपनी में 4 लाख इन्वेस्ट हुए हैं, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी एन इनकम, एंड इनकम माइनस एक्सपेंसेस will give you profit. but you know हम expenses में depreciation, interest and tax ये कुछ special items है जिनको अलग से treatment करेंगे. first we will minus depreciation, फिर interest and फिर tax. okay, so income जो भी है उसमें से खर्चे excluding depreciation, interest and tax वो minus करने के बाद we get the profit. इसको कहते हैं earning before interest, tax, depreciation, amortization. Now when I say depreciation, so depreciation and amortization दोनों real brothers हैं. okay, both go parallelly. depreciation tangible assets के ऊपर लगता है, for example depreciation of machinery. amortization intangible assets के ऊपर लगता है, for example amortization on IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, वो इंटेंजिबल है. ओके, सो जो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू हम P&L में चार्ज करते हैं दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन. सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बोथ आर सेम. डेप्रिसिएशन टेंजिबल के लिए है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल के लिए है. सो इनकम में से डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये 3 खर्चे माइनस करने से पहले, यानी सभी एक्सपेंस ले लो बट ये 3 खर्चे वो एक्सपेंस में मत रखो. ओके, सो इनकम माइनस ऑल द एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग दिस 3 एक्सपेंसेस विल गिव यू प्रॉफिट बिफोर, दिस प्रॉफिट इज बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन. अब सबसे पहले ये प्रॉफिट में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसको यू नो प्रॉफिट की जगह पर वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड ई, यानी अर्निंग. सो इसको एबिटा कहते हैं, EBITDA, एबिटा. ये एबिटा इम्पोर्टेंट है. ओके, नाउ एबिटा फर्म्स को कंपेयर करने के लिए यूज़फुल है. नाउ एबिटा क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, अगर कंपनी है, हर कंपनी की टैक्स की ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकती है. आप सोचोगे सर टैक्स की रेट तो सेम होती है, बट नो, यू नो इन टैक्सेशन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. टैक्सेशन इज़ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. टैक्सेशन देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट. सो टैक्सेशन सिस्टम इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, so that you know persons like us can earn our bread and butter. It is not simplified and it will never be simplified. टैक्स को अगर इजी कर दिया तो बेचारे सीए करेंगे क्या? ओके, सो टैक्सेशन की ट्रीटमेंट हर फर्म में अलग अलग हो सकती है. 2 टैक्स की रेट सेम है, बट यू नो इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस कि कौन से एग्जेम्पशंस को लेना है, किसको नहीं लेना है. ओके,
सम एरिया में गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स से आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, कुछ एरियाज में नहीं मिलेगा। तो हैंस अगर आपको कंपेयर करना है फर्म्स को जो अलग अलग जगह पर है, तो टैक्सेशन सबका अलग अलग है, सबका डिबेंचर्स या बोरोड कैपिटल इज़ डिफरेंट, सबने क्या है बैंक लोन अलग अलग अमाउंट के लिए है, हर कोई इंटरेस्ट अलग अलग पे कर रहा है। एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो डिफरेंट, कुछ कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, सो व्हाट विल बी द सिचुएशन इन दैट केस, मशीन तो यूज़ नहीं किया है तो उनका डेप्रिसिएशन कम होगा। ओके, सो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन ये ऐसे हैं कि जो कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। हैंस जो कंपैरिजन के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है वो है एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। ओके, अच्छा, ये प्रॉफिट में से फर्स्ट ऑफ ऑल वी माइनस डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस कर दो तो यू विल गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस कर दो, यू गेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये शेयर होल्डर्स के लिए है, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दो, तो अब जो प्रॉफिट बचा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। सो लेट्स रिवाइज, क्या होता है, इनकम माइनस ऑल द एक्सपेंसेस बट एक्सक्लूडिंग 3 एक्सपेंसेस। कौन से 3 एक्सपेंस नहीं लेने हैं, वो है इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। So this income minus normal expenses will give you EBITDA, earning before interest, tax and depreciation, amortization. फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सो वी गेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो वी गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर माइनस करेंगे टैक्स, तो वी गेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दो, तो देन प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप सोचो कि सर ये इतना सारा सीखने की क्या ज़रूरत है, तो प्लीज़ नोट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये ग्रीन वाला प्रॉफिट लेना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस डेप्ट, यानी इक्विटी एंड डेप्ट दोनों के लिए हमने कितना कमाया, तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर बोरोड फंड है तो ऊपर वाला प्रॉफिट भी बिफोर माइनस इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो इंटरेस्ट तो हमने कमाया है वो बोरोड कैपिटल के लिए। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कैलकुलेट करना है तो इन न्यूमरेटर जो प्रॉफिट होगा इट विल बी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, बिफोर इंटरेस्ट होना चाहिए। And another thing which you should keep in mind is that कि अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर की कितनी कमाई है, नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी कैपिटल होगा, इन दैट केस तो वो येलो वाला प्रॉफिट होगा, विच इज़ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो फॉर्मूला इज दिस, करेक्ट फॉर्मूला इज दिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज profit before interest and tax, EBIT, earning before interest and tax upon capital employed. ओके, फिर आप सोचोगे सर एबिटा आपने एक्सप्लेन किया वो नहीं लेना है, नो, एबिटा एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट के तौर पर समझना है। एबिटा इज़ यूजफुल टू कंपेयर द फर्म्स, बट हियर the profit which we are taking is after charging depreciation, amortization. So return on investment करना है तो profit before interest and tax divided by capital employed. When I say capital employed, I have already explained equity preference यानी shareholders is to be taken as well as borrowed capital. It means debt is also to be considered. And if you want to calculate return on equity, then it is profit just for equity shareholders divided by equity shares into 100. So you can see here कि तीनों जो कंपनी है उसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो सेम है। ओके, बट व्हेन यू डू कैलकुलेशन यू आर एबल टू सी दैट कि प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अलग अलग है और
लुक हियर, सिंस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज सेम, सब में 4 लाख ही लगे थे और सब ने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1.5 लाख ही कमाया है, तो 1.5 लाख बाय 4 लाख, यू कैन सी हियर. सो ऑल द कंपनीज return on investment is same 37.5%, but return on equity is different, and you can see that सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी सी में है, कंपनी बी का उससे कम है, कंपनी ए का उससे कम है. और ऐसा क्यों हो रहा है? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड लीवरेज, इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज. यानी कंपनी 37.5% कमा रही है, बराबर. और ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा कि अगर वो ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे या फिर ज़्यादा डिबेंचर्स इशू करे, क्योंकि अगर आप डिबेंचर से पैसे बोरो करोगे एंड यू विल पे देम लोअर देन दिस रेट, 37.5% आप कमा रहे हो, लेकिन कंपनी बी देखो क्या कर रही है, 1 लाख के ऊपर बेचारे डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ 10% दे रही है, बट ही इज अर्निंग 37.5%. तो जो बच गया पैसा, यानी अदरवाइज अगर पूरे के पूरे इक्विटी शेयर्स इशू करते तो 37.5% पे करना पड़ता. अब डिबेंचर्स 1 लाख के कर दिए हैं, तो ये 1 लाख के अमाउंट के ऊपर आपके पैसे बच रहे हैं. कितने पैसे बच रहे हैं? 37.5% माइनस 10%, यानी 27.5% आपकी सेविंग्स हो रही है ऑन दिस 1 लाख, क्योंकि आपने कमाया है 37.5%, बट डिबेंचर होल्डर्स को पे किया है ओनली 10%. तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिट बचा है, हैंड्स कंपनी बी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अर्निंग है. यू कैन सी एज कम्पेयर टू कंपनी ए, हेयर दे आर अर्निंग मोर, एंड कंपनी सी में और ज़्यादा अर्निंग है क्योंकि इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हैं एंड उनको वो कम पैसे पे कर रहे हैं. अर्निंग 37.5%, गिविंग ओनली 12%. सो दे आर अर्निंग ऑन दिस 1,20,000 एडिशनल अमाउंट. सो कंपनी सी के शेयर होल्डर्स के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा, एंड हैंस कंपनी सी के शेयर होल्डर्स आर हैविंग मोर मनी विद देम, ओके, और मोर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. So this concept is called financial leverage. Okay, financial leverage means increase in earning by equity shareholders due to issue of debt or issue of debentures. So debentures issue करने से आपके इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा कमा पाएंगे, क्योंकि what you are earning is more than what you are giving to debenture holders. So this concept is called financial leverage. It must be there in your business studies. So after this discussion, let's go through the topic once again. So as I may explained you, इनके न्यूमरेटर में गड़बड़ है, इन्होंने डायरेक्टली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है, which is not correct. So I will teach you which is correct thing. Okay. So we have the concept of EBITDA here. So EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, amortization. Okay, ये कंपनी की ट्रू इफेक्टिवनेस मेज़र करेगा. इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर कंपेरिजन, एंड उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं EBITDA के. EBITDA का पहला एस्पेक्ट है इंटरेस्ट. सो why we do not minus interest? Reason is given because interest is not the operational expense. Interest financial expense है, okay, it is not the operational expense. यानी हर कंपनी ने बोरोड कैपिटल लिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या सेम अमाउंट बोरो किया हो वो भी नेसेसरी नहीं है. सो इंटरेस्ट ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ये फाइनेंशियल डिसीजन है, फंडिंग डिसीजन है. हैंस इंटरेस्ट को हम एज एन एक्सपेंस नहीं लेते हैं इन EBITDA. देन टैक्सेस, एज आई टोल्ड यू, टैक्स ट्रीटमेंट में बी डिफरेंट फॉर different companies due to different rules and regulations, and hence to avoid this distortion or difference we exclude tax component. And depreciation and amortization,
अगेन आई टोल्ड यू के मेथड्स में भी डिफरेंट. सम कंपनी में यूज लेबर इंटेंसिव technology where depreciation will be lower. Some may use capital intensive technology where depreciation will be higher. Hence, we are not taking this depreciation and amortization. So about EBITDA, no, it is very important. EBITDA will indicate the real effectiveness, real operational effectiveness of the business. So real operational effectiveness of the business can be measured by EBITDA. एंड जनरली मार्केट में जो कंपनी का भाव डिसाइड होता है वो एबिटा का कोई मल्टीपल होता है. फॉर एग्जांपल कंपनी का एबिटा है 10 लाख, यानी हर साल ऑपरेशन से 10 लाख वो कमाती है. तो लेट्स से उसका मल्टीपल है अगर 5, सो 10 लाख का 5 यानी 50 लाख में शायद वो अपने आप को सेल कर सकती है. सो ये मल्टीपल वो प्राइस डिसाइड करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर बिजनेस का प्राइस क्या है. So EBITDA is useful for comparison as well as EBITDA is useful to decide the worth or price of a business. Okay. So in business we buy future cash flow. So EBITDA will give you what is the cash flow you are earning and some percentage of this. When you let's say multiply some multiple, then you will get the price. If let's say your EBITDA is 10 lakhs and multiple is 3, then price of that business is 30 lakhs. So we have discussed this concept and now we will solve the question, practical questions. And here we have one question. This question is important, but you know their solution is not correct and hence I will solve this for you. So from the following information calculate ROI and ROE. At that also we have net profit after tax ratio which is 12%. Now question number 14, I am solving this. Net profit ratio, it is net profit after tax ratio. तो वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो इज गिवन एज 12%. नाउ हियर वी आर ऑल्सो गिवन टैक्स रेट एंड वी आर ऑल्सो गिवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नाउ टैक्स रेट 50% इज़ वेरी हाई, इट्स नॉट प्रैक्टिकल एंड यू नो 50% में कभी 60% लेना है या कभी 40 लेना है, दो इट बिकम्स वेरी इजी. सो मेक इट 40%. आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इज फॉर 40%. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू मीन्स सेल्स. सो वी आर गिवन सेल्स विच इज 10 lakhs. सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आई डोंट नो, बट आई नो सेल्स इज 10 lakhs into 100. So this 0 will get cancelled, it will come to that side. So 1 with 5 zeros, 4 zeros, so it is 10,000 into 12% will give you net profit after tax. ओके एंड प्लीज़ नोट मैंने यहाँ पर इनटू 100 लिखा है, देन आई विल गेट परसेंटेज. सो ये 12% है बट परसेंटेज नहीं लेना है, इट इज़ ओनली 12 क्योंकि इनटू 100 किया है. ओके सो दिस इज 12. सो 10,000 into 12 will give you how much? Yes, it is 1,20,000. This is your net profit after tax. So in this question, step number 1, you will find net profit after tax which is indirectly given to you. Then let's look at the question. Borrowings है 4 लाख, equity capital है 1,50,000. We have reserves and surplus which is
1,50,000 and preference capital which is 50,000. You know ये दोनों amount same है. So what I am doing, I am changing this amount. So let's assume that के reserves are 1,80,000 and we have preference capital as 50,000. So we need to calculate these ratios, return on investment as well as return on equity. So I told you one thing, we need to gradually go on deducting few things. So what is the structure? Step number 2 is very important because sometimes you also need to do reverse working. So I will write net profit before interest and tax. So it is earning before interest and tax. उसमें से I will minus interest, and if I minus interest then I get net profit before tax, and I will minus tax from this which is 40%, and if I minus tax from this I will get net profit after tax. It is called EBT, earning before tax. If I minus tax then I will get EAT, earning after tax, and from this earning after tax I will minus preference dividend, and if I minus this preference dividend then what do I get finally? So I will get net profit for equity shareholders. Then I get net profit for equity shareholders. So let's go through this. Now in this question I have net profit after tax which is 1,20,000. So I need to do reverse working. This is 1,20,000 and few information is available with me. For example, interest. For interest, you know, you have borrowed 4 lakhs at 15%. So 4 लाख का 15% interest pay करना पड़ेगा. So interest is 15% on borrowed money. Borrowed money is 4 lakh in this question. So देखो 15% means 10% plus 5%. So 10% means exclude 10. तो 40,000 10% है, उसका आधा कर दो 20,000 5% होगा. तो 10% plus 5% will give you 15%. 40,000 plus 20,000 will give you 60,000. देशी हिसाब. Okay. No, you also need to do the calculations in a practical way. It's not necessary कि always you do the same thing. 15 divided by 100 into 4 lakhs and cancel something, do calculation. So that should be avoided. I got shocked when, you know, I taught to one student from Mount Litera Z school. She was a good student, scoring more than 1810, but I got surprised. At one point of time, I asked her to do 20,000 minus 19,000. So you know what she did? She wrote 20,000 minus 19,000, then 0,0,0. You know, a typical way. Then 0 cancelled, then it is 1, then 0, and after this she gave me the answer 1,000, and I got shocked. Okay, so try to do calculation in a simple way if possible. So we got this value. Dividend is also readily available. Here you can see that 20% preference share capital is there, and we will pay dividend to preference shareholders. So on 50,000 we will pay 20%. So 20% on 50,000. 20% means 1/5. 50,000 का 1/5
will be what? 10,000. So one thing is clear, I got this amount which is 1,10,000. Okay, so this was also given, this was also given, this was also given, so that we can find this one. Now here there is some twist. I want this to calculate my return on investment. Okay, बट यहाँ तक पहुँचने से पहले मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सो यू नो व्हाट आई विल डू, लेट दिस इज़ 100. अगर ये 100 है तो 100 का 40%, दिस विल बी 40, सो दिस विल बी व्हाट? 60. ओके, तो अगर 60% 1,20,000 है तो फिर ये वाला पोर्शन कितना होगा? यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. सो आई कैन राइट दिस कि दिस क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स विल बी 1,20,000 into 100 divided by 60. So 60 2s are 120. So it is 2,000 with 2 zeros. So it is 2 lakhs. So I found this as 2 lakhs. ये मुझे मिल गया. ओके, और अगर ये मुझे मिला है सो 1,20,000 में से ये 2 लाख का डिफरेंस निकालेंगे. सो 80,000 टैक्स मिल गया. एंड नाउ लुक हियर, ऊपर वाला जो अमाउंट है इट शुड बी 2,60,000 बिकॉज 2,60,000, ये दोनों को ऐड कर दो बिकॉज दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट विल गिव यू दिस अमाउंट. So 2 lakh is after you minus 60,000 from this amount. So when we add these two, we'll get के earning before interest and tax is 2,60,000. So this also we have found. Okay. So now actually we need to use two things, this and this, for our answer. So my answer number 1, return on investment is earning before interest and tax. Don't use short forms. Okay, I am using because I just want to teach you the concepts. So return on investment is earning before interest and tax divided by capital employed. Into 100. So earning before interest and tax is 2,60,000. In capital employed, I need to include all the things. For example, equity shareholders के fund के लिए equity capital plus reserves and surplus. Please note, reserves and surplus are the past accumulated profits and these belong to the equity shareholders. So I will write equity shareholders fund plus preference capital plus borrowed fund. When I say equity shareholders fund, we are given two things, equity capital plus reserves and surplus. So reserves means past profits. So this is made up of two things. So it's 2,60,000 divided by, now I will add these things. Equity shareholders fund is 1,50,000 plus 1,80,000.
and preference capital you can see here, it is 50,000. And we have borrowed fund, this is the borrowing 4 lakhs. So it is 2,60,000 divided by 150 plus 50, 2 lakhs plus 4 lakhs, 6 lakhs plus 1,80,000. So 7,80,000. Into 100 into 100 into 100. एंड नाउ ये ज़ीरो कैंसिल करने में बहुत अच्छा लगता है. सो इट इज़ 2600 डिवाइडेड बाय 78. सो लेट्स डिवाइड विथ 2. 2 3 ज़ा 6, 18, 2 9 ज़ा, and here it will be 1300. Okay, and I can write this like this: 13 into 100 upon 39. So 13 3s are, so it is 100 by 3, so it is 33.33%. So we got this answer. So ROI calculation should be clear, and now I need to calculate ROE, return on equity. Second one, return on equity is profit available to equity shareholders, or you can also write like this: net profit after tax minus preference dividend, both means the same thing, upon equity shareholders fund into 100. So already I have calculated net profit for equity shareholders is 1,10,000. So is 1,10,000 divided by equity shareholders fund. I am not taking more time to write this again, but you know, equity shareholders fund means equity capital plus reserves, and when I add these two, 1,50,000 plus 1,80,000, I get that amount. So it is 1,10,000 divided by 3,30,000 into 100. So 0 0 0 0 will get cancelled, and you can see here it is 11 into 100 divided by 33. So 11 3s are 33, so 100 by 3, so again 33.33%. Now some students will feel that कि sir इसमें दोनों same आया. I modified the question, okay, and it is possible in some situation these two ratios may be same, but ये दो ratio में ROE should be more than ROI. ROE should be more because equity shareholders should earn more. So I hope you are clear about this question. Okay, so practical question may be asked based on this, so please go through this question. Their presentation is not proper, okay, even my presentation is not proper, but the most simple presentation with explanation I have shared this with you, so you should actually note this down in your notebook.
This is also a very important question. Differentiate between return on equity and return on investment. So please note, return on investment is a broader concept, क्योंकि वो ओवरऑल सभी इन्वेस्टर्स के लिए है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ए नैरोअर कंसेप्ट बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये ओवरऑल कमाई कैलकुलेट करेगा, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई कैलकुलेट करेगा. ओके, सो फॉर्मूला दोनों के हमने एक्सप्लेन किए हैं. सो ROI मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी and ROE will calculate profitability of equity only. सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी इन ROE. ओके, और कंपोनेंट्स आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज. सो आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट दिस डिफरेंस बिटवीन ROE and ROI. Now another type of question which they can ask, I will also solve this. This is also very important. Calculate ROI and ROE on the basis of given information. You have newly started beauty parlor business. You spent 1,50,000 to open the parlor, of which 70,000 of your own money and borrowed a loan of 80,000. 70 खुद का है, बैंक का 80 है, बोरो किया है 80. 70-80 मिलकर 1,50,000 हुआ है. इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 70%. सो ये जो बोरोइंग की है ना 80,000 की, उसके ऊपर 7% पे करना है. ओके, 80,000 के ऊपर 7% पे करना है पूरे साल का. एंड सेल्स रेवेन्यू पर मंथ इज 80,000. सेल्स हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है. नाउ एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा. सेल्स हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी है. ओके, एंड फिर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स तो अलग से हम लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गिवन हियर. डेप्रिसिएशन जो दिया है इट इज़ फॉर फुल ईयर. ओके, एंड वी नीड टू फाइंड दिस. सो इन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू follow one pattern. First of all, you need to write sales. We explain this in break even point. Sales minus cost of goods sold will give you actually gross profit, and from this when you minus fixed expenses, but here these expenses should be excluding depreciation, amortization, interest and tax. Obviously preference dividend exclude ही करना है, normal खर्चे. And then we come back to our main concept. Then it is EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, amortization. माइनस करो depreciation and amortization. तो क्या मिलेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से माइनस करोगे इंटरेस्ट, सो यू विल गेट अर्निंग बिफोर टैक्स. उसमें से माइनस करोगे टैक्स, सो विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स. एंड उसमें से माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, then you will get finally earning for equity shareholder. ये क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, सो दैट्स फाइन. नहीं है तो एक्सक्लूड इट. Okay, so this structure you should remember, it's very easy. Okay,
सो इन दिस क्वेश्चन प्रेफरेंस डिविडेंड लिखना ही नहीं है, बट मैंने प्रॉपर कंसेप्ट दे दिया है, कुछ चीज़ नहीं है तो मत लिखो। सो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले कहा था कि सेल्स है 80,000 पर मंथ। सो पर मंथ का कैलकुलेशन हम करेंगे। सेल्स इज 80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 30,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? यस इट्स 50,000। उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंस हम माइनस करेंगे। सैलरी, रेंट 30,000 का खर्चा है फिक्स्ड एक्सपेंस, सो ये हो जाएगा 20,000। और उसमें से डेप्रीशिएशन 3,000 है ना, फुल ईयर का है। ये सभी महीने के हमें कैलकुलेशंस चाहिए। ओके, सो यहाँ पर वी विल डू दिस कैलकुलेशन मंथली। सो लुक हियर, डेप्रीशिएशन होगा 3,000 बाय 12। अच्छा, लेट मी डू वन थिंग। डेप्रीशिएशन पॉइंट में आंसर जाएगा, तो डेप्रीशिएशन को है ना 2400 कर देते हैं। ओके, सो डेप्रीशिएशन 2400 पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय 12। इसका मतलब है कि एक महीने का मिल जाएगा 200। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा 18,800। ओके, देन टैक्स की रेट हमारे पास है, और 80,000 बोरो किए थे 7% के रेट पर। तो 80,000 बोरो किए थे 7% के रेट पर। अगेन ये कैलकुलेशन शायद क्या है कि पॉइंट में जा सकता है, बट वी नीड टू कैलकुलेट फॉर 1 मंथ। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। ये जो 7% है उसको हम 9% कर देते हैं, मेक इट 9%। सो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 9/100, 9%। सो 80,000 9%, 9/100, और ये पूरे साल का है 9%। सो आई नीड टू टेक फॉर 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। ऑल दिस अमाउंट्स आर फॉर मंथली बेसिस और फॉर पर मंथ। सो लेट्स डू कैंसलेशन। 3 3s are 9, 3 4s are 12, then 4 2s are 8, so it's 20,000. 2 zeros will get cancelled, 2 zeros will get cancelled. So ये है ऊपर 200 इंटू 3, सो कितना हो जाएगा 600। सो 18,800 माइनस 600 विल गिव यू 18,200। एंड टैक्स की रेट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। टैक्स इज 14%। ओके, so tax is 14%. So 14/100 into 18,200 00 1% होगा 182, 14% यानी 182 इंटू 14, 4 2s are 8, 8 4s are 32, 182 1s are 182। सो ये है 2548। ये हम माइनस करेंगे, 2 minus 8, so it will 10 minus 8 is 2, and 9 minus 4 is 5, so 11 minus 5 is 6, and 7 minus 2 is 5, so it is 15,652. This is the earning after tax. And now I need to calculate two ratios. तो first ratio
was return on investment. I am not writing the formula, we already know. For this we take earning before interest and tax, and for another one I will take earning for equity shareholders. So return on investment में profit is 18,800 divided by own fund plus borrowed fund. Here you invested 70,000 of your own and 80,000 was borrowed. नाउ अनदर थिंग इज सेट कि अगर ये आपको पूरे साल का कैलकुलेट करना है तो फिर इनटू 12 करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं. सो वी मेक इट इनटू 12 पर एनम. अदरवाइज जो रेट मिलेगी इट विल बी पर मंथ. ठीक है, पर मंथ ही रहने देते हैं. ओके, मंथली हमारा प्रॉफिट है. सो इट इज़ 18,800 डिवाइडेड बाय 1,50,000 into 100. Zeros will get cancelled, other two zeros will get cancelled. So it is 188 divided by 15. 15 ones are 15, 3 will come, it will become 38. 15 twos are 0 will be introduced, it will be 80. 15 fives are 75, so I can say that it is 12.5%. Okay, and then I will calculate second one, which is return on equity, but please note it is per month, it is not per annum, बिकॉज प्रॉफिट जो हमने लिया था पर मंथ. तो आप सोचोगे सर ये तो बहुत हाई है, पर मंथ 12%. सो येस, देखो हाउ मच यू इन्वेस्टेड, 1,50,000 बराबर. अब 1,50,000 का 10% कितना होता है, सो 15,000. तो हम 15,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं हर महीने, हर महीने उतना कमा रहे हैं. सो हैंस इट्स गुड फॉर अस. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारा जो प्रॉफिट है ओके वो ही बहुत ज़्यादा है, एंड हैंस ये है 12.5%. फोकस ऑन द कंसेप्ट. नंबर्स तो आपको क्या है अलग अलग पिक्चर्स दे सकते हैं. ओके, सो बिजनेस अच्छा है. रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए आई विल टेक 15652 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही पैसे. ओन फंड हमारे 70,000 थे, इंटू 100 करेंगे. 0,0,0,0 विल गेट कैंसल्ड. तो इट इज़ 15652 अपॉन 700 है, तो मैं ऐसा लिखूँगा 7 into 100. So 15652 will be divided with 7. 7 twos are 14. 1 6 will come here. 7 twos are 14. 2 will remain. 5 will come. 7 threes are 21, and now 2 will come. So it is 2236 divided by 100. So it is 22.36%. Okay, so it's good कि
रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ हायर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी घर वाले 22% कमा रहे हैं और सब मिलकर ओवरऑल 12% कमा रहे हैं. ओके, सो रियल रिस्क टेकर्स आर ओनर्स एंड हेंस यू शुड अर्न मोर. एंड यू नो इन सम बिजनेसेस दे डू द रिवर्स, उनको फिर बंद करना पड़ता है. ओके, विजय माल्या जी फॉर एग्जांपल बिजनेस में ही प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी और फिर आपने कर्ज ले लिया, सो ऑब्वियसली आप उनको पे नहीं कर पाओगे. सो दैट इज़ द फूलिश डिसीजन. अगर रिस्क लेने के बाद भी ROE कम है या उतना ही है ROI जितना, सो फिर इक्विटी शेयर होल्डर बनना ही नहीं चाहिए. इक्विटी शेयर होल्डर बनते इसलिए हैं सो दैट वी कैन अर्न मोर. So I hope you are able to understand this question and please note same उसके जैसा एक और question है, question number 18. So I am not solving that, you can solve by yourself, already it is solved, but it is exactly on the same line. Okay, and एक question है कि जिसमें वो depreciation charge नहीं करता है, फिर एंड में उसको एसेट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न कि वो सही किया कि नहीं किया. तो प्लीज़ नोट डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है. इट शुड बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट. इफ़ यू डोंट डेबिट देन योर प्रॉफिट विल बी मोर. देन इट इज़ पॉसिबल दैट कि प्रॉफिट इज़ मोर दे यू मे फील दैट कि इट्स योर ओन मनी, योर ओनर्स विल टेक अवे दिस मनी, देयर विल बी ड्रॉइंग्स. बट व्हेन आफ्टर सम ईयर्स व्हेन दोज एसेट्स will be not useful and there is a need to buy new one, then you won't have any money because money was taken. Why it was taken? Because profit was more. Okay, so by charging depreciation, what you are doing, you are actually keeping the cash with the business. प्रॉफिट कम कर रहे हो, कैश तो उतना ही है, डेप्रिसिएशन में पैसे जाते नहीं हैं. तो रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट कम दिखता है तो आप वो पैसे बिजनेस से लेकर नहीं जाओगे, बट कैश इज़ ऑलरेडी देयर इन द बिजनेस. कैश की बैलेंस हाई होती है ड्यू टू डेप्रिसिएशन. वो कैश आपको नए एसेट खरीदने में काम आएंगे. सो इसने जो किया है वो बहुत ही बड़ा अकाउंटिंग पाप है. ओके, तो वैल्यूज वायोलेटेड बाय दिस पर्सन इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है एंड ही इज़ नॉट वर्किंग टूवर्ड सस्टेनेबल ग्रोथ. डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट keeping the money aside to buy the new assets. New assets खरीदने नहीं है, it means your mindset is not growth oriented. So with this we finish this chapter. It's very easy and simple chapter. I think you have covered this in your 12th accountancy. Wish you all the best. Bye bye. Take care.